नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome back, devotees. This time we will be covering the 5.14.23, the 23rd verse of the 14th chapter of Srimad Bhagavatam, 5th canto. So, without wasting any time, we will be covering the verse. So, the verse goes like this: अथ च तं तस्माद् उभयथापि हि कर्मास्मिन् आत्मनः संसारवपनम् उदाहरन्ति. So, the translation given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada translates this verse, which means Srila Shukdev Goswami says here that learned scholars and transcendentalists who are really in the path, who are real Vaishnavas, who are pure devotees, who are really on the path of Krishna consciousness, who has surrendered towards the Lord fully. मतलब एज कृष्णा से भगवत गीता कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. So there are 6 stages of Sharanagati, which is 6 streams of Sharanagati, or six stages of Sharanagati, or 6 types we can say. So one who is fully parangat in that 6 types of 6 stages of Sharanagati towards Lord, so that is the one who is, we can say, who is a transcendentalist or a learned scholar, because obviously who is fully surrendered unto Lord, because Sharpad said that as a person become a devotee who progress in the path of devotional service, he acquires some qualities of the Lord. So as Lord is fully infinitely knowledgeable, so he becomes also knowledgeable. Therefore these people therefore condemn the materialistic path of fruitive activity. What is the materialistic path of fruitive activity? Whatever we are right now conducting, that right now I am studying, then I will get a good college, and then मुझे अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, छोकरी मिलेगी, फिर बच्चे हो गए, लास्ट में मर जाओगा. So this is materialistic path of fruitive activity. Right now I am doing for the pleasure of the Lord, then Lord can do anything with me. So so for a materialistic, I am also materialistic, पर अभी के लिए बात कर रहा. For a materialistic person, he conducts activities for fruit as fruity activity, because right now अभी वो जो भी करेगा, अभी वो खा रहा है तो भोग करने के लिए, अभी वो कोई भी कार्य कर रहा है कि शायद समझ लो अभी वो तपस्या कर रहा है पर बाद में भोग करने के लिए, अभी वो यज्ञ कर रहा है पर बाद में स्वर्ग जाने के लिए. सो ऑल ऑफ दिस, अभी वो पढ़ाई कर रहा है तो बाद में जाके आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में जाके और भोग करने के लिए, वो सोच रहा है कि वहाँ पे भोग है पर वहाँ पे कुछ नहीं है. सो लाइक दिस दे, द ट्रांसेंडेंटल पीपल condemn the materialistic path of fruitive activity, because it is the original source and breeding ground of material miseries. So here the cycle, or we can say the connection is made, that materialistic path or any fruity activity, देखो मटेरियलिस्टिक पाथ और एनी फ्रूटी एक्टिविटी, अभी फ्रूटी एक्टिविटी बात करें एक्टिविटी, तो फ्रूटी एक्टिविटी मीन्स व्हाट, एनी material thing we do without considering Krishna, without taking Krishna in this as the center of life, or as the center of that activity, any activity we do is called a fruity activity. और वो एक्टिविटी हमको कर्म बंधन में बांध देगी, ऐसा है. सो if we eat any non prasadam items,
if we do anything like right now I'm giving example, like watching some shorts reels, वो वीडियो देखना, एनीमे देखना और मैनी मैनी सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स वो प्राइम वीडियो वो सब कुछ देखना जो इसमें भगवान का नामो निशान नहीं है उसमें, लाइक फ़ोन मचेड़ना, पोर्नोग्राफी देखना, नियम तोड़ना, जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं, मतलब जो भी कार्य हम करें, like any activity we do but we don't keep Krishna as the center, it is called a fruity activity, और कर्म बंधन में बांधने वाले कर्म कार्य. So and that activity, it is pointed that this particular activity which is done without keeping Krishna at the center, it is the original source and breeding ground for material miseries. Miseries means what? दुख, क्लेश. हम बोलते हैं कि हमको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, घर की शांति चाहिए, तन की शांति चाहिए, पर अभी हम सारे कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमको मटेरियल मिजरीज, क्लेश प्राप्त हो. सो हाउ कैन वी गेट शांति? शांति माता जी मिल सकती है बट शांति नहीं मिल सकती है. सो यस, original source and breeding ground you have, I have also not seen but I have heard that when mosquitoes breed, or when the female mosquitoes lays egg, they lay thousands and thousands of eggs uh, in at the same time in the water or any contaminated place. So why the particular word breeding ground क्यों बोला गया है? Why not anything? Why ओरिजिनल सोर्स भी यही है, जो भी हम दुख और क्लेश भोग रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स भी यही है, मटेरियल एक्टिविटी और एनी फ्रूटी एक्टिविटी. एंड ब्रीडिंग ग्राउंड उसका मल्टीप्लीकेशन, लाइक बैक्टीरिया समटाइम्स मल्टीप्लाई थाउजेंड्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस इन जस्ट some 1 hour or 2 hour. So like this इनफाइनाइटली मल्टीप्लिकेशन होता रहता है. उसका ब्रीडिंग ग्राउंड भी यही है और ओरिजिनल सोर्स भी यही है दुख का, जो हम अभी क्लेश भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं एक एक क्षण. हम जब यहाँ पे हम हमारा पीड़ा हम भोग रहे हैं, उसका यही एक कारण है फ्रूटी एक्टिविटी. सो यस, एंड ऐसा भी नहीं कि चलो अभी हम कार्य कर रहे हैं, अभी हम दुख भोग लेंगे, चलो कार्य भी हम अभी कर रहे हैं. अभी आधे लोग ऐसा मानते हैं कि देर इज़ नो पुनर्जन्म, देर इज़ नो पहले का जन्म. राइट नाउ दिस इज ओनली लाइफ एंड दिस इज ओनली लाइफ, आई हैव टू एंजॉय, आई हैव टू डाई. सो ऐसा भी नहीं कि अभी हम अभी हम हमारा कार्य करें, हमारा भोग करें, हमारा दुख कष्ट भी प्राप्त करें और मर जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं. ऐसा भी नहीं. they say, Shah Shukdev Goswami says that both in this life and in the next. So any activity right now we do without keeping Krishna in the center, it will not leave us. Even if right now I am in this body, or if I leave this body and go into another body, that particular activity, if any particular activity I conduct without keeping Krishna at the center, this will not leave me, and it will, वो मान के ही रहेगा कि इसका जवाब मुझे देना है, और वो है कष्ट के रूप में. बट कृष्णा से इन द भगवत गीता 18.18, मैं शायद एग्जैक्ट वर्स नंबर भूल गया हूँ, बट अभी मैंने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सारे धर्मों का त्याग. जो भी अधर्म धर्म लोग बोलते हैं उसको चेंज कर दे, भगवान के शब्द को भी चेंज कर देंगे, अधर्म लिख देंगे, पर नो, सारे धर्म अधर्म जो भी कुछ भी सब कुछ छोड़ो. सर्वधर्मान, सर्व एवरीथिंग, सर्वधर्मान परित्यज, त्याग दो. माम एकम शरणम व्रज. ही सेज माम, मेरा, और एकम, नॉट द्वि, नॉट थ्री. अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें बाई, थ्रीज, टेट्रा कीज, मतलब वो क्या कहते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो अभी बहुत दूर का टॉपिक हो गया. सो ही सेज माम एकम, मेरा एक का शरण लो. अहम, कृष्णा एश्योर्स, वो भी 2 बार एश्योर करते हैं, अहम त्वाम
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि। एंड इफ दैट डियोटी आस्क्स कि, और इफ दैट पर्सन आस्क, चलो मैं आपका शरण लूँ, बट आप ना करो तो then Lord adds the final two words in that particular verse, ma shucha. He says, don't fear, ma shucha, don't worry, मैं करूँगा, yes, ma shucha. So yes, that was the translation for this particular verse. We'll be covering the purport in the next video. हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। हरे कृष्णा।